Hello dear students, Assalamu alaikum. So welcome to the students of AdMaths, IGCSE 0606 and O Levels 4037 to the huge platform of Smart Concepts by Easy, where you will get the smart and easy concepts. So this is Muhammad Afaz Zafar. Hope so you all are doing well. Alhamdulillah, I'm also good. So today we have to start our lecture number 1, chapter number 1, topic number 1 and exercise number 1.1, which will be totally all about functions. But before starting functions, we just have to talk about one thing, that is mappings. Because if we don't understand about this thing, mappings, till then we cannot understand about functions. जब तक हमें मैपिंग्स का कॉन्सेप्ट नहीं पता चलेगा तब तक हम फंक्शंस के बारे में भी अच्छे से नहीं जान सकते. एंड ऑब्वियसली कि फंक्शंस का जो हमारा यूज है वो एक्सरसाइज नंबर 1.2 में है, बट एक्सरसाइज नंबर 1.1 will be all about mappings. So firstly we need to clear the concepts about mappings. Okay students, before starting my lecture I just want to let you know about one thing, that if you watch this video with fully concentration, then I don't think so that you may have a need of physical classes as well, because by this platform you will clear your all concepts in deeply. Fine, but condition is that if you don't skip any part, because अगर आप कोई भी पार्ट स्किप करते हैं तो उसका मतलब ये हुआ कि आपने पूरा कॉन्सेप्ट मिस कर दिया. और मेरी कोशिश ये होती है कि मैं हर एक चीज़ को डीपली एक्सप्लेन करता हूँ और आप लोग के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उसको मैं क्लियर करूँ. बट फॉर दैट पर्पज यू ऑल्सो हैव टू सपोर्ट मी. सपोर्ट किस तरह की होनी चाहिए कि आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपका कोई पार्ट मिस ना हो और मेरी जो मेहनत है वो भी ज़ाय ना हो. क्लियर? So guys, if you don't miss any part and watch the video with fully concentration, then I will give you the surety that getting the Easter egg is not a big deal for you. So without wasting our time, we are going to take a start of topic, that is mappings. So what is mappings? Basically mappings, in easy words you can say that this is the relation. Now thing is, what is relation? Okay, I'll tell you in simple words. मैं आपको एक simple words में इसकी definition बताता हूँ relation क्या होता है. And obviously you must know about the relation. देखिए relation जो होता है हमारे पास, basically it's a connection or combination or interaction between two things. किसी भी दो चीज़ों के दरमियान interaction, ठीक है, कॉम्बिनेशन या आप कनेक्शन कह सकते हैं. दो चीजें जब आपस में जुड़ जाती हैं तो उनका क्या बन जाता है, आपस में रिलेशन बन जाता है. दैट इज वेरी सिंपल वर्ड. टू अंडरस्टैंड फर्दर वी विल टेक सम एग्जांपल्स. ठीक है, अच्छा हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं. उस एग्जांपल्स में हम ये देखेंगे कि हाउ टू आइडेंटिफाई द मैपिंग्स, क्योंकि मैपिंग्स का कॉन्सेप्ट उसी एग्जांपल से ही आपको ज़्यादा क्लियर होगा. And also you will understand the other thing, that is that how to identify the types of mappings, because exercise number 1.1 is totally all about the types of mappings. अगर आप लोग को ये एग्जाम्पल समझ में आ गई जो मैं अभी लिखने जा रहा हूँ तो आप लोग की ज़िंदगी आसान हो जाएगी. क्लियर? लेकिन उसके लिए पहले आपको ये जितनी भी एग्जाम्पल्स हैं इनको अच्छे से समझ लेना है. और मेरा नहीं ख्याल कि मैं एक्सरसाइज नंबर 1.1 को ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि आपको इन्हीं एग्जाम्पल से ही एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा. सो लेट्स टेक सम एग्जाम्पल्स. Okay students, so these are the examples of mappings, or you can say that the relation. Okay, basically in mappings or relation, as you know, there are two things. In mathematically we can say there are two sets in which the first one is known as input and the second one is known as output, जिसमें हम फर्स्ट को क्या कहते हैं, इनपुट कहते हैं, और सेकंड को क्या बोलते हैं, आउटपुट कहते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ द थिंग इज दैट व्हाट इज इनपुट एंड आउटपुट.
ओके, व्हाट द वैल्यू वी असाइन टू एनीथिंग दैट इज इनपुट। किसी भी चीज को जब हम खुद से कोई वैल्यू असाइन करते हैं वो क्या कहलाती है, आपकी इनपुट। एंड व्हाट द रिजल्ट वी गेट इन प्लेस ऑफ इनपुट, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आउटपुट। ठीक है, जो हमें उसका रिजल्ट मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, आउटपुट। फॉर एग्जाम्पल, आप जैसे एग्जाम्स अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है, जब आप पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, दैट इज योर इनपुट। जब आपका एग्जाम्स का रिजल्ट आता है, जब आपको पता चलता है कि आपके क्या ग्रेड्स आए हैं, ए स्टेरिक आया, ए आया, बी आया, क्या आया, तो जो रिजल्ट आपके पास आता है वो बेसिकली क्या होता है, आउटपुट। रिमेंबर वन थिंग दैट इनपुट इज इंडिपेंडेंट, आउटपुट इज डिपेंडेंट। कैसे डिपेंडेंट है, देखें, जो भी हमारी इनपुट की वैल्यू होगी उसके हिसाब से ही हमें आउटपुट मिलेगी। लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। अगर एक फंक्शन है मेरे पास y इक्वल्स टू 5x स्क्वायर, ये मैंने लेट सपोज एक फंक्शन ले लिया। अब मैं कहता हूँ कि भाई इसमें अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूँ तो क्या आंसर आएगा, x की वैल्यू 2 रखता हूँ तो क्या आंसर आएगा, x की वैल्यू अगर मैं 3 रखता हूँ तो क्या आंसर आएगा। देखिए, अगर मैं यहाँ पे x की जगह क्या रखता हूँ 1, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 5 5, so it means y equals to 5 when we put x equals to 1. Okay, when we put x equals to 2, it means in place of x we will put 2, 2 square will be 4, 4 5s are 20, so y answer will be 20. And same when we put x3, so in place of y, in place of x, then we get y equals to 3 square 9, 9 5s are 45. So it means इनपुट पे ही सारी वैल्यूज डिपेंड कर रही होती है। देखिए, इनपुट में हमने x की जगह जो जो वैल्यू पुट की, आंसर हमें आउटपुट में उसी हिसाब से मिल रहा है। इनपुट में वैल्यू चेंज करते हैं तो आउटपुट भी चेंज हो रही है। क्लियर? सो बेसिकली आउटपुट इज डिपेंडेंट एंड इनपुट इज इंडिपेंडेंट। क्लियर? चलिए जी, अब मैंने एक ये सेट लिया, दो सेट्स लिए सॉरी, जिसमें फर्स्ट वन इज इनपुट एंड द सेकंड वन इज आउटपुट। अभी हमारे पास दो सेट हैं, इसको हम जैसे ऑर्डर पेयर में लिख सकते हैं इस तरह से, a कनेक्ट विद 2, इट मींस a, 2, सेम, b कनेक्ट विद 1, b, 1 एंड c कनेक्ट विद 3, so we can write c, 3. So this is all about relation and mapping. Okay, now how can we identify that what type of mapping is this? ये मैपिंग की कौन सी टाइप है? अगर आप यहाँ पे देखें, हर इंडिविजुअल इनपुट को हर इंडिविजुअल आउटपुट मिली हुई है। यहाँ से क्या कोई इनपुट रिपीट हो रही है? नहीं। Is there any repetition in output? No. So it means if there is no repetition in input or no repetition in output, so that kind of mapping is known as 1-1 mapping. Clear? So now move to the figure 2. अब यहाँ पे फिगर 2 में हमारे पास देखिए सेम इनपुट है वही आउटपुट है, लेकिन फर्क क्या है? A connect with 1, so we can write a, 1, same. B connect with 2, we can write b, 2, and C also connect with 2, we can write c, 2. So now if you observe that which thing is going to be repeat, यहाँ पे कौन सी चीज रिपीट हो रही है? क्या इनपुट रिपीट हो रही है? नहीं, क्योंकि हर फंक्शन से एक ही चीज असाइन हुई है। बट अगर हम आउटपुट को देखें तो हमारे पास आउटपुट रिपीट हो रही है। क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ कि B भी 2 से कनेक्ट हो रहा है और C भी 2 से कनेक्ट हो रहा है। In easy words we can say that in multiple inputs we are getting the same output, or we can say that in multiple inputs we are getting one output. Multiple means many and one output means one, so it will become many one mapping. Clear? So moving to the third one. अच्छा, थर्ड वन में अगर आप देखें तो ये अगेन आपको दूसरी तरह की मैपिंग लग रही होगी कि A से हमारे पास क्या निकल रहा है 1, a, 1, B से क्या निकल रहा है हमारे पास 2, b, 2 एंड ऑल्सो b, 3. ओके स्टूडेंट्स, कैन यू ऑब्जर्व वन थिंग कि यहाँ पे हमारे पास जो थी
क्या रिपीट हो रही थी? आउटपुट, क्योंकि जो फर्स्ट वैल्यूज होती है इनपुट की होती हैं, ये जो सेकंड वैल्यूज होती है किसकी होती है? आउटपुट की होती है। अब आपको कैसे पता चलेगा यार यहाँ पे जो है ये हमारे पास कौन सी चीज रेपिटेशन हो रही है? तो ऑब्वियसली जो दूसरी वैल्यू अगर रिपीट हो रही है तो इसका मतलब है आपको पता है आउटपुट ही हमारी रिपीट हो रही है। बट इन दिस केस B is going to be repeat. B is in the first set, तो इसका मतलब क्या रिपीट हो रही है? इनपुट। It means in one input you are getting the multiple outputs, but in this case you got one output in place of multiple inputs. Clear? यहाँ पे हमें multiple outputs मिल रही हैं किसकी बेस पे? एक इनपुट की बेस पे, और यहाँ पे multiple inputs की बेस पे हमें एक आउटपुट मिल रही है, so it is many one. So this will be, because you have seen that one input and many outputs, so you can write one many. आप यहाँ पे लिख सकते हैं this is which mapping? one many mapping. So basically this is whole concept about the exercise number 1.1. Now मैं आपको गारंटी देता हूँ इस चीज़ की कि आपको 80% तो यहाँ तक समझ में आ ही गया होगा। बाकी जो थोड़ा बहुत 20% है वो हम जब हम एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट द आइडिया दैट हाउ टू आइडेंटिफाई द मैपिंग्स। क्लियर? नाउ वी आर गोइंग टू टेक अ स्टार्ट ऑफ एक्सरसाइज नंबर 1.1. Okay students, so this is our exercise number 1.1 in which we have to determine whether each of the following are one one, many one or one many. इनमें से हमें बताना है कि कौन सी वन वन मैपिंग है, कौन सी many one है और कौन सी वन many. Clear? So we will solve the questions one by one. If you have understood the examples, so I don't think कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होगी या कोई इशू होगा. Clear? So taking our part number 1, that is x approaches to x plus 1. अच्छा, कंडीशंस को आप लोगों ने इग्नोर नहीं करना क्योंकि कंडीशंस के ऊपर ही ये सारे क्वेश्चंस क्या कर रहे हैं? बेस कर रहे हैं. अब जैसे यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट कंडीशन क्या दी हुई है? x बिलोंग्स टू r. r मीन्स रियल नंबर्स, कि आपने जो x की वैल्यूज लेनी है वो किस में से लेनी है? रियल नंबर्स में से. रियल नंबर से बाहर आप वैल्यूज नहीं ले सकते. आपकी बाउंड्री क्या है? रियल नंबर्स. लेकिन आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि रियल नंबर्स, हर तरह के जितने भी नंबर्स हैं रियल नंबर्स होते हैं एक्सेप्ट जो माइनस में रूट के साथ आ जाए. लाइक अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ -1 का रूट, तो ये आपके पास रियल नंबर नहीं होगा, ये आपके पास क्या बन जाएगा? इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स. ठीक है, ये बात की कैटेगरी है बैरल. अभी आप लोगों ने जस्ट याद रखना है रियल नंबर्स क्या होते हैं. तो कोशिश करें सिर्फ जो माइनस के साथ रूट में नंबर्स होंगे वो आपने नहीं लेने, बाकी जितने भी नंबर्स हैं वो आपकी मर्जी, आप ले सकते हैं एक्स की जगह. इसके लिए सबसे जो आसान तरीका है वो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आप एक्स की वैल्यूज क्या लें. देखिए सबसे पहले तो आप ये याद रखें ये आपकी इनपुट होती है और ये आपकी आउटपुट होगी. क्लियर? दिस इज इनपुट एंड दिस इज आउटपुट. ओके, so to understand this we will take the different values of x. अब हम x की वैल्यूज लेंगे रियल नंबर्स के अकॉर्डिंग. तो इसके लिए सबसे आसान तरीका है कि आप x की सिर्फ 3 वैल्यूज ले लो. कौन कौन सी? एक x की वैल्यू ले लो -1, एक ले लें 0 और एक ले लें +1. इसमें माइनस वाला नंबर भी कवर हो रहा है, +1 वाला भी हो रहा है, प्लस वाले नंबर भी कवर हो रहे हैं और 0 खुद भी कंसिडर हो रहा है. तो इस तरह से आप इस कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको इजीली सॉल्व कर लेंगे. बिकॉज जब तक वो आपको कंडीशन चेंज नहीं करेगा तब तक जब भी रियल नंबर की सिर्फ अगर कंडीशन दी हुई होगी तो आप सिर्फ ये 3 नंबर ही लेने इनफ है. क्लियर? इससे ज़्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है बिकॉज वी डोंट हैव टू मच टाइम. एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स लेके उसको सॉल्व करें. ओके, नाउ वी आर टेकिंग सेम फंक्शन दैट इज x अप्रोचेस टू x प्लस 1. अब हमें क्या करना है? पहले x की जगह क्या पुट करना है? -1. सो इट मीन्स अगर यहाँ x की जगह -1 मैं पुट करूंगा तो इसका मतलब यहाँ पे भी क्या पुट करूंगा? -1. सो -1 यहाँ पे क्या आ जाएगा? -1 और ये +1 एज इट इज. सो वी विल सॉल्व दिस साइड.
ये क्या आंसर आएगा, -1 + 1 = 0. ओके, नाउ पुटिंग द सेकंड वैल्यू दैट इज 0. अब मैं x की जगह 0 पुट करूंगा तो यहाँ पे भी क्या पुट करूंगा, 0. सो इट मीन्स 0 + 1 answer will be 0 + 1 answer will be 1. Now again I am going to put the value 1, so it will become 1 + 1 = 2. Now if you will draw the map, this was your input -1 0 1 and this was your output 0 1 2. अब अगर आप गौर करें तो हर वैल्यू पे आपको एक यूनिक वैल्यू मिल रही है. इट मीन नो वैल्यू इज गोइंग टू रिपीट, ना आपकी इनपुट रिपीट हो रही है ना ही आपकी आउटपुट रिपीट हो रही है. इट मीन्स दिस इज which mapping, 1 1 mapping. This kind of mapping is known as 1 1 mapping. Clear? So it means this is which one, 1 1. Okay ji, move to the second one. Move to the second question, that is x approaches to x square plus 5. But students, we have a same condition that x belongs to real number. It means same we will take x equals to -1 0 and +1. This is enough. क्लियर? जब भी हमें रियल वैल्यूज की कंडीशन दी हुई होगी तो हम सिर्फ ये 3 वैल्यूज की लेंगे, ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है. हाँ, जब तक वो कंडीशन चेंज नहीं करता खुद से. ओके, सो नाउ वी आर पुटिंग फर्स्टली -1. यहाँ पे हम x की जगह पहले क्या पुट कर लेते हैं, -1. x अप्रोचेस टू x स्क्वायर प्लस 5. अब यहाँ पे मैं पहले क्या पुट कर रहा हूँ, -1. सो इट मीन्स इन प्लेस ऑफ दैट x आई ऑल्सो पुट -1. -1 it will become square plus 5. So -1 square means 1 का स्क्वायर क्या, देखिए माइनस का स्क्वायर इसको क्योंकि इवन पावर है तो ये इसको क्या चेंज कर लेगा, प्लस में चेंज कर देगा. तो -1 square means 1. 1 + 5 = 6. Okay, now putting the second value that is 0. Now again 0 square plus 5. 0 square means 0. Answer 0 + 5 answer will be 5. Clear? Now putting the next value that is 1. So it means 1 square plus 5. 1 square 1. 1 + 5 = 6. Now we draw the diagrams. Now -1 0 1 and 6 5 and again 6. We cannot write again 6 because there is a repetition of 6. जो 6 रिपीट हो रहा है आप उसको दोबारा नहीं लिख सकते. ओके, -1 डाला था तो आंसर क्या मिला, 6. तो इट मीन -1 कनेक्ट विद 6. 0 आपने डाला था जब इनपुट तो आपको आंसर क्या मिला, 5. सो इट मीन 0 2 5 एंड ऑल्सो व्हेन यू पुट द 1 तो आपको आंसर क्या मिला, 6. तो इसका मतलब 1 से भी आपको क्या मिला, 6. सो इट मीन्स व्हाट इज गोइंग टू बी रिपीट ओवर हियर, यहाँ पे आपके पास क्या रेपिटेशन हो रही है, किसकी, आउटपुट की. तो देखिए मैं इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास रेपिटेशन कहाँ पे हो रही है, यहाँ पे. तो इसका मतलब ये तो आपके पास है, ये तो हो जाएगा मैनी, और ये क्योंकि मैनी इनपुट्स पे एक ही आउटपुट मिल रही है सो इट विल बिकम 1. रिमेंबर वन थिंग, व्हेन यू ऑब्जर्व दैट आउटपुट इज गोइंग टू रिपीट सो इट मीन्स इन प्लेस ऑफ आउटपुट यू विल पुट 1. जब भी आउटपुट रिपीट हो रही है तो आपने 1 लिखना है उसकी जगह, और जब इनपुट रिपीट हो रही होगी तो 1 इधर आ जाएगा, बाकी मैनी बनी. क्लियर? सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3 with having a same condition. X approaches to x cube. Very simple and very easy question, but with having a same condition, again we will take the values x equals to -1 0 and +1. सेम वैल्यूज के साथ सॉल्व करेंगे. देखिए सबसे पहले मैं -1 ले लेता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, -1 की पावर 3 एंड -1 हैव ऑड पावर सो इट विल चेंज इन माइनस, बिकॉज ये माइनस में ही रहेगा क्योंकि ऑड पावर हो तो माइनस में ही रहता है साइन.
और अगर यहाँ इवन नंबर होता तो ये क्या हो जाता, प्लस हो जाता। ओके, -1 हैव ऑड पावर, सो इट विल बी -1. नाउ वी विल पुट 0, 0 क्यूब आल्सो विल बी 0. नाउ वी विल पुट 1, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 की पावर 3, आंसर इज 1 + 1. क्लियर? So it means when we draw input and output -1 0 1 -1 0 1. So you have seen that every individual input has every individual output. कोई भी input output repeat नहीं हो रही. So it means this is also 1 1. Fine. This was many 1 and now this is 1 1. Okay, student. Now move to the question number 4. With having a same condition, x approaches to 2 power x. Okay, students. Again, we will take the same values. X equals to -1, 0, and +1. When we put in place of -1, so -1 यहाँ पे x की जगह क्या आ जाएगा -1. So we can write if any number have power in minus, तो उसको आप कैसे लिख सकते हैं 1 upon that number. अब ये नीचे जो पावर है इसकी +1 हो जाएगी, लेकिन +1 लिखे ना लिखे मर्जी होती है. So it means it will become 1 upon 2. Okay, next number we are going to put, that is 0. अब अगर 0 पुट करते हैं, आपको पता है बचपन से आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं कि किसी भी नंबर या किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 आ जाए, पावर में अगर 0 आ जाए तो उसका आंसर क्या आता है, हमेशा 1 आता है. क्लियर? ओके जी, नेक्स्ट वैल्यू पुट करते हैं 1, तो 2 की पावर 1, आंसर विल बी 2. क्लियर? सो वी हैव सीन दैट एवरी इंडिविजुअल इनपुट हैव एवरी इंडिविजुअल आउटपुट. यहाँ पे कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है जो रिपीट हो रही हो, तो इसका मतलब ये भी आंसर क्या होगा आपके पास 1 1. तो आप यहाँ पे लिख देंगे इसके साथ, ये कौन सा है भाई 1 1. क्लियर? Okay students, now move to the next part, which is part number 5. X approaches to 1 upon x. अच्छा, यहाँ पे अब उन्होंने कंडीशन थोड़ी चेंज कर दी. मैंने कहा था ना कंडीशन वो चेंज भी कर सकता है आपके साथ. तो देखिए यहाँ x 0 हो गया. अब आपने वो काम नहीं करना जो हम बचपन से कर रहे थे, क्योंकि आप ये ना कहें कि सर तो बस -1 0 और 1 से ही सॉल्व कर रहे हैं. अब उन्होंने कंडीशन दे दी कि रियल नंबर तो है, लेकिन x ग्रेटर देन होना चाहिए 0 से. मतलब जितनी भी x की वैल्यूज आप लेंगे 0 से ग्रेटर. 0 से ग्रेटर मीन्स 1 2 3. माइनस में हम वैल्यूज नहीं ले सकते अब. ठीक है, उन्होंने बाउंड कर दिया, ना ही 0 ले सकते हैं ना ही माइनस में ले सकते हैं. 0 से ऊपर वाली जितनी भी वैल्यूज हैं, 0 से ऊपर कौन सी वैल्यूज होती है, पॉजिटिव. So it means you can take the just positive numbers. Positive numbers means we can take x equals to 1 2 3. Clear? Okay. So in place of x, when we put 1, जब हम पहली बार 1 पुट करते हैं तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे. देखिए x की जगह आ गया 1, 1 upon 1 आ जाएगा, आंसर will be 1. Now we are going to put 2. So it will become 1 upon 2. When we put 3, it will become 1 upon 3. So it means हर इनपुट की आपको एक अलग अलग वैल्यू मिल रही है. So it will be also 1 1 mapping. Clear? So you will write over here that this is 1 1. Okay. Move to the next part. हाँ भाई, समझ में आ रहा है सबको. ओके, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 6, दैट इज x अप्रोचेस टू x स्क्वायर प्लस 1. और यहाँ पे कंडीशन थोड़ी सी अलग हो गई. अब उन्होंने 0 को शामिल भी कर दिया. ओके, इट मींस x ग्रेटर देन होना चाहिए 0 से और x इक्वल भी होना चाहिए 0 के. देखिए जो पिछला पार्ट था ये वाला, इसमें हम 0 को भी नहीं ले सकते थे, बिकॉज
तब जो साइन था सिर्फ किसका था, ग्रेटर था। अब ये इक्वल्स का भी साइन है तो इसका मतलब जीरो को भी ले सकते हैं। क्लियर? सो ओके, वी विल टेक द स्टार्ट फ्रॉम 0 0 1 2 3। वी कैन नॉट टेक द नेगेटिव वैल्यूज as there is a restriction। क्लियर? रिस्ट्रिक्शन है, हम माइनस में कोई भी वैल्यूज नहीं ले सकते। ओके, फर्स्टली वी पुट द 0 in place of x। okay, if we put the 0 then we get the result 0 square plus 1, answer is 0 plus 1 1। if we put the value 1 square plus 1, it will be 1 square 1 plus 1 equals to 2। if we put 2, it will be 2 square plus 1, 2 square means 4, 4 plus 1 equals to 5। if we put 3, so it will be 3 square plus 1, it means 3 square is 9, 9 plus 1 equals to 10। now you have seen that every individual input has every individual output, no repetition is there in input or output, so it means this is also which category, 1 1 mapping। so you will write over here that this is 1 1। क्लियर? ओके जी, मूव टू द नेक्स्ट वन। बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, आई डोंट थिंक सो कि आप लोग को इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही होगी, बट इन केस अगर आ भी रही हो तो आप कमेंट्स में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। देन आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट वीडियो। जो भी आप लोग की प्रॉब्लम होगी वो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसी के साथ एक्सप्लेन कर दिया करूँगा। ठीक है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। ओके जी, मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज x approaches to 12 upon x, बट अगेन विद द डिफरेंट कंडीशन। अब यहाँ पे जीरो को उन्होंने शामिल नहीं किया, जीरो शामिल नहीं है क्योंकि x जस्ट ग्रेटर देन जीरो, तो जीरो से जस्ट बड़ी वैल्यूज हमने रखनी है। अच्छा, जीरो को उन्होंने क्यों नहीं शामिल किया होगा? क्योंकि अगर आप यहाँ पे x की जगह जीरो रखते तो ये बन जाएगा 12 अपॉन जीरो, एंड एनी नंबर डिवाइडेड बाय जीरो व्हाट यू विल गेट, उसका आपको कैलकुलेटर भी जवाब नहीं दे पाता, कैलकुलेटर भी हार मान जाता है, वो बेचारा एरर दे देता है, उसको उसके बस में नहीं है क्वेश्चन सॉल्व करना। तो आपको पता है जब इन किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करते हैं तो आंसर विल बी इन्फिनिटी, तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता उसका आंसर। तो इसलिए उन्होंने जस्ट यहाँ पे कंडीशन दी x की वैल्यूज ग्रेटर देन जीरो लिख सकते हैं। क्लियर? ओके जी, नाउ वी विल टेक अ स्टार्ट विद 1 2 3। ये तीन वैल्यूज पुट करके देख लेते हैं। So x approaches to 12 upon x, so this will be 1, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 12 upon 1, answer will be 12। when we put 2 then it will become 12 upon 2, answer will be 6। when we put 3, 12 upon 3, 3 1s are 3, 3 4s are 12, we will get the answer 4। it means again in individual input we have individual output, कोई भी repetition नहीं हो रही ना input में ना ही output में, so it means this is also which category, 1 1 mapping। so you can write 1 1 mapping। clear? now the last part is remaining, that is x approaches to x plus minus x। Part number 8 is x approaches to plus minus x। Okay जी, very simple question, but the condition is different। Okay, what we will do, we will just put the positive values। यहाँ पे जस्ट आप पॉजिटिव वैल्यूज ले सकते हैं क्योंकि उन्होंने जस्ट कहा x जो है ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पे जीरो भी आ जाता तब भी कोई मसला नहीं है, लेकिन क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। Okay students, now we will take x equals to 1 2 3 again, so it means when we put x equals to 1 in place of x, when we put 1 तो क्या बन जाएगा, प्लस माइनस 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें आंसर किसका आ रहा है, प्लस का 1 भी आ रहा है माइनस का 1 भी आ रहा है। when we put 2, so it means answer will be plus minus 2, तो क्या आंसर आ जाएगा, प्लस 2 माइनस 2।
When we put 3, so answer will be plus minus 3. So it means answer is plus 3 and minus 3. Now you have observed कि आप एक इनपुट पे कितनी आउटपुट हासिल कर रहे हैं. How many outputs you are getting? In place of one input, you are getting 2 outputs. यहाँ पे भी आपने एक इनपुट रखी थी, आउटपुट्स कितनी मिली? 2. यहाँ पे भी एक इनपुट रखी, आउटपुट्स कितनी मिली? 2. इट मीन्स कि हर एक इनपुट पे आपको मल्टीपल आउटपुट्स मिल रही है. सो इट मीन्स इनपुट इज 1, क्योंकि वहाँ पे तो कोई रेपिटेशन नहीं है. रेपिटेशन किस में आ रही है? इसमें. तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि भाई अगर आपको एक इनपुट पे बहुत सारी आउटपुट मिल रही है, बहुत सारी का मतलब अगर 2 आउटपुट भी मिल रही है तो वो किस में आएगा? मैनी में. जबकि यहाँ पे रेपिटेशन नहीं है, तो इसका मतलब ये तो हो गया आपके पास 1, और यहाँ पे आपके पास बहुत सारी आउटपुट है, तो ये क्या बन जाएगा? मैनी. सो इट मीन्स इट विल बिकम 1 मैनी. 1 एंड मैनी. क्लियर? यहाँ पे एक ही इनपुट है और यहाँ पे आउटपुट्स कितनी आ रही है आपके पास? 2. So it means 1 many. So this will be which mapping? 1 many. Clear? So this is the whole concept about mappings and relations. Okay guys, so this was our exercise number 1.1, in which we have done the identification of types of mappings. Clear? So which was very easy exercise. I don't think so that you faced any problem. आपको कोई मसला आया होगा, because बहुत ही easy exercise थी. और इसी exercise के ऊपर बेस कर रही है हमारी exercise number 1.2, in which we will learn about functions, which will be very interesting. बहुत ही मज़ा आने वाला है सबको, जो कि हम next class में करेंगे exercise number 1.2 में. So I hope you got this lecture, or you got the concepts of all types of mappings. So we'll see you in the next video, in which we will start exercise number 1.2 about functions. Till then, stay safe.